So yes, I was talking. I'll start with a short story. I was told that this is primarily going to be a session for kids, but that's okay because most of the stories that I choose are stories for all ages. So this story is about a farmer, and this farmer had a wristwatch, and this wristwatch was very dear to his heart. Can anybody tell me why could a wristwatch be dear to someone's heart? You have this wristwatch. Yeah. My primary reason is, can I share you? Yeah. Oh, okay. My primary reason is that because Yeah, that'll be good. Thank you. Yeah. hi, my primary reason is because my dad gifted it to me. So his dad gifted it to him. और कोई हाँ घड़ी किस किसने पहली बोला घड़ी दिखा दो अपनी जल्दी जल्दी से हाँ वो बहुत अच्छी है आपकी ऐसा है कि मैं आपके पास आ नहीं सकता हूँ देख रहे हैं मैं गले में पट्टा बांध दिया इन्होंने अच्छा I would actually do without it. I'll do without it. Is it okay? Unless okay. I'll use a hand mic. That's better. Yeah. Primarily, my yeah, the whole family goes for a toss if I don't have my watch. Oh, that's interesting. Yeah, yeah, and actually that's what happened with the farmer's family. Oh, our friend here has to say something. You can actually remember the sacrifices you have made for by saving your pocket money to buy the watch. My God, give him a big hand. Wow. He could I've be told- fond of accessories. Okay, okay. What else? What else? What else? Why could a watch be dear to someone's heart? I bought it with my first salary. Bought it with her first salary. Anybody else? Yes, sir. I'm coming to you. It reminds me that my time is running out. Good one. Good one. It reminds him that his time is running out. So what happened with this farmer's watch was, it was dear to his heart because his mother had gifted it to him and his mother was no more. So basically it was the only sign of remembrance that this farmer had, and he always had this watch on his wrist, doing his daily chores, going to the farm, sowing seeds, irrigating the fields, harvesting the crop, everything, the watch is there on his wrist. So one of those days when he went to the farm and was doing his work, he was coming back for lunch. Just when he was coming back for his lunch, he said, oh, where's my watch? So I've lost it. Where's my watch? Show me your hand. What are you hiding? Oh no. No. Is anybody... Okay, everybody hands up. I want to check this. JLF is anyway very controversial. I know some watches are getting lost here. No, that doesn't look like the one that was farmers. No. Okay. No. So the farmer can't find the watch. So what does the farmer do? Farmer gets an idea. And the idea is that there are a group of children playing beyond the farm. And he said, let me call them. इनको बुलाता हूँ ये मेरी घड़ी ढूंढेंगे सारे आए क्या करना है बता दो एंड ही सेज ऐसा है कि मेरी घड़ी खो गई है इस फार्म के अंदर अंदर जो बच्चा ढूंढ के देगा उसको इनाम दूंगा ये सुनना था कि सारे अंडर द हे ओवर द हे थ्रू द हे अराउंड द हे हर जगह ढूंढ के नहीं मिली क्या करें जाओ घर जाओ भाई क्या कर सकते हैं नहीं मिली तो नहीं मिली अब जब घड़ी नहीं मिली तो फार्मर ने भी हार मान लिया चलते हैं घर एक बच्चा आया बड़ा प्यारा सा छोटा सा इनके जैसा आगे कहता है एक चांस और दे दो फार्मर कह रहे हैं एक चांस और दे दो उसने देखा बड़ा सिंसियरली आके बोल रहा है एक चांस और दे दो अपने आप आया मैंने तो बुलाया भी नहीं ठीक है ले जा ऐसे नहीं शर्त है शर्त क्या अकेले जाऊंगा
कोई साथ नहीं आएगा मेरे, ठीक है जा। और ये जाता है बिल्कुल ठीक फार्म के अंदर और जाके आह, "30 seconds, 1 minute, 1.5 minutes, 2 minutes," and he gets up. Here's the watch. And he comes and gives it to the farmer. Farmer's like, "Ah!" He's amazed. He's surprised, like, "Oh, I'm happy that I got the watch, but how did you find it?" And he's like, "I didn't do anything." "Yeah, I saw that. You didn't do anything." He's like, "Yeah, but I was listening. And when I was listening, I heard it tick and tock and tick and tock and tick and tock and tick, and I knew it was there." So listen, let me start my story now, which is The Bear That Wasn't. Thank you so much. So the story starts now, which the session is titled The Bear That Wasn't. This is a story, this is a children's book written by Frank Tashlin, an animation film director in 1946. One of the best children's books I have ever read. And the first time I read it, I was like, "Oh, I have to perform this. This just can't be read inside the books. It doesn't deserve there. It has to reach people. And if I can tell it, nothing like it." So here I am, telling you The Bear That Wasn't. And I'll keep doing English, Hindi, meecha beecha, thoda thoda, because that's how I've been told to do it. तो एक बार क्या हुआ कि एक भालू था, और ये भालू जो था, ये जंगल जो कि बहुत बड़ा था, उसके बिल्कुल छोर पे जाके एक दिन खड़ा हुआ। देखता क्या है कि हंसों का एक जोड़ा दक्षिण को जा रहा है। फिर उसने जो आसमान में टकटकी लगा के देखा, पेड़ों की तरफ देखा, पेड़ों के पत्ते पीले हो गए थे, भूरे हो गए थे और शाखों से झड़ने लगे थे। बोला कि जब हंसों का जोड़ा दक्षिण को उड़ने लगे और पेड़ों के पत्ते शाखों से झड़ने लगे, समझ लो कि मौसम बदल रहा है। सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी का मौसम आएगा तो भालू क्या करेगा? छुप जाएगा। कहाँ छुप जाएगा? सो जाएगा। हाँ? Hibernate. हाइबरनेशन। बड़े नेशनलिस्टिक लोग बैठे हैं यहाँ पे। खैर, हाइबरनेशन करेगा। वो जाके अपने से कहा, "हाँ भाई, सर्दी आ गई है, अब हमारा काम क्या है? जाके सो जा, अच्छी सी थोड़ी जगह बनाओ यार। हाँ, सर्दी आ गई। हाय, गुफा अच्छी है, और क्या चाहिए जिंदगी में? बस यार, ये सारा स्टोरी टेलिंग वगैरह सब बेकार है। गुफा में जाओ, खत्म करो यार, बस। हाँ, अब ये बैठा है अपना यहाँ पे कि इतने में होता क्या है, ठीक उस गुफा के ऊपर जंगल में बहुत सारे आदमी आते हैं, चार्ट्स लेके, मैप्स लेके, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके, और पूरा जंगल जो है, अच्छा ये कितने मीटर है, नापो इसको, ओके, नंबर ऑफ ट्रीज इज 368, अच्छा वहां पर जाओ, लैंड खत्म हो रहा है, सॉइल का रंग बदल रहा है, फलाना ढमकाना करते 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 चार्ट किया, मैप किया, सर्वे किया, पूरा लगे रहे। अगले हफ्ते और आदमी आए, खूब सारे आदमी आए जा रहे। इस बार क्या करके आए? इस बार आए वो बड़ी सारी मशीन्स लेके, दड़ 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 दौड़ 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 पूरा मशीन से उन्होंने जंगल को खोद दिया। खुदाई मशीन, ड्रिलिंग मशीन ला के डक 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 डक, फिर लाए आरी, पूरा जंगल को चीर फाड़। खुदाई मशीन, आरी, ट्रैक्टर, कुल्हाड़ी सब ला के जंगल की, मतलब जंगल नहीं बचा। करे आ रहे काम पूरा जो है चले जा रहा है पूरे जंगल की। उन्होंने कहा कोई आके देखे तो पता नहीं जंगल है। अब ये साहब जा रहे हैं, जंगल की ये हालत हो गई। अब उन्होंने कहा अच्छा जंगल तो अब रहा नहीं, अब करना क्या है? चलो भाई काम शुरू करो। काम शुरू करा। काम जब शुरू होना चला तो उन्होंने वहां पर एक लंबी सी, बड़ी सी, ऊंची सी इमारत बनाई
और एक फैक्ट्री तैयार की। वो जो विशाल सी फैक्ट्री थी उसमें मौसम भर काम जो है चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सर्दी में होना जो शुरू हुआ था, कौन सा मौसम आएगा सर्दी के बाद? हाँ, स्प्रिंग, बिल्कुल, बसंत, बहार। अब स्प्रिंग जो आया तो खिली खिली धूप, आहा, फूल होने चाहिए थे लेकिन अब जंगल हो चुका है। आप साहब जब वहां पे स्प्रिंग आया तो अंदर गुफा के अंदर भालू जागा। भालू ने कहा अच्छा अब तो मेरा टाइम खत्म हो गया, चलो उठ जाओ। अबे भालू ने अपनी आंखें खोली थी, उसने कहा कहाँ है यार, लाइट नजर आ रही, कहाँ से आया था? वहाँ से आया था, उठना ही पड़ेगा यार, थोड़ा सर्दी 1-2 महीने और चल जाती, क्या टेंशन थी, चलो चलते हैं, चले आ रहे हैं। जैसे ही वो उस सीढ़ी पर चढ़ा जहाँ गुफा के अंदर बाहर आके उसने जंगल में आना था, आंखें अभी उसकी आधी खुली हैं, बड़ी बड़ी धूप भी आ गई है, क्या करूं? आंखें ज्यादा देर तक उसकी आधी खुली रही नहीं, उसने आगे क्या हो गया था? क्या हो गया था? बिल्डिंग बन गई थी, बिल्डिंग बन गई थी। और पहले क्या था वहां पे? जंगल। जंगल था, जंगल की जगह बिल्डिंग बन गई थी। उसने कहा हाँ? ये क्या, कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है, हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने अपनी आंखों से कहा ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता, ये तो सपना है। उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने आप को ये चिकोटी वाली और धीरे धीरे आंखें खोल रहा, देख रहा है कि अब भी वो सारी की सारी बिल्डिंग, सारी की सारी इमारतें वहीं हैं। उसने कहा ये सपना नहीं है भाई, ये तो सच है। पर पेड़ कहाँ गए, फूल कहाँ गए, जंगल कहाँ गया, ये मैं हूं कहाँ? उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं, कहाँ हूं मैं? जहां मैं रहता था ये वो जगह तो नहीं है, क्या करूं? अभी ये सोच रहा था अपने दोस्त के साथ बैठ के कि इतने में देखता है एक फोरमैन, एक सुपरवाइजर है, चल काम पे चल। हैं? भालू देख रहा है, जी मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं भालू हूं। भालू, अच्छा माना काम ना करने का, चल काम पे चल। बोले नहीं नहीं सर, मैं सच में, मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ, मैं भालू हूँ। उसने कहा, बहुत गुस्सा आया इसको, सुपरवाइजर का ऐसा है, तू भालू नहीं है, तू एक बेवकूफ आदमी है जिसने एक फर का कोट पहना हुआ है और जिसे हजामा, जिसे शेव की जरूरत है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे जनरल मैनेजर के पास ले जाऊंगा, तू समझ गया? नहीं सर मैं तो भालू। उसने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा, तू चल। आप साहब इसको जनरल मैनेजर के पास लेके जाते हैं। जनरल मैनेजर देखो यार बोल रहा, ऐसा है कि तुम भालू नहीं हो, तुम एक बेवकूफ आदमी हो जिसने एक फर का कोट पहना है और जिसे शेव की जरूरत है। कह रहे सही सर, मुझे जब से याद है मैं तब से भालू हूं, तो आप ऐसा है मुझे मत बताओगे मैं कौन हूं। बोले तुम ऐसा नहीं मानोगे, तुम्हें ना मैं 3rd वाइस प्रेसिडेंट के पास लेके जाऊंगा। ऐसा 3rd वाइस प्रेसिडेंट के पास लेके, कौन कौन, जनरल मैनेजर, फोरमैन और भालू जगह। सर देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भालू ने। हाँ तुम भालू नहीं हो, तुम एक बेवकूफ आदमी हो जिसने एक फर का कोट पहना हुआ है और जिसे शेव की जरूरत है, जिसे शेव की जरूरत है। आप साहब ये बोला था देखो ऐसा है, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, अपने अकाउंट्स चेक करो कहीं है मेरा नाम उसमें, हमें मत बताओ तुम यही काम करते हो। सर मैं भालू नहीं हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें 2nd वाइस प्रेसिडेंट के पास लेके चलूंगा। आप साहब ये उसको लेके जा रहे हैं 2nd वाइस प्रेसिडेंट के पास। चलो 2nd वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा ऊपर वाले फ्लोर पे है उसका ऑफिस, तो ऊपर। सर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा भालू है, काम नहीं करेगा। ये बड़ा गुस्सा आया इसको, काम नहीं करेगा तू हैं? सीधा ही वायलेंस, पीटा वाला तो नहीं है यहाँ पे कोई? अच्छा अब साहब बोलेगी तुम भालू नहीं हो, तुम एक बेवकूफ आदमी हो जिसने एक फर का कोट पहना है और जिसे शेव की जरूरत है। तो साहब भालू बोले सर देखिए मैं तो एक छोटा सा मुन्ना सा सीधा सा मामूली सा सीधा सा सादा सा बिल्कुल एक भालू हूं और कुछ नहीं हूं, सच्ची में, आई शपथ। लेकिन वो बोले ना तू ऐसे नहीं मानेगा, हम तुझे जो है 1st वाइस प्रेसिडेंट के पास लेके चलेंगे। 1st वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था वो हेडक्वार्टर्स में था, तो हेडक्वार्टर्स चलते हैं आइए। अब हेडक्वार्टर्स में गए, वहां पे जाके बोलते हैं कि सर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा मैं भालू नहीं हूं, कह रहा मैं भालू, कह रहा मैं यहाँ काम नहीं करता,
कोई बात हुई? ऐसे हर कोई बोलने लग जाएगा तो ऐसे बताओ हमारी फैक्ट्री चलेगी? आपका प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा ना? तो आप इसको बोलो, ये कौन है? भालू। क्या बात कर रहे हो सर? सर आप अपना प्रॉफिट कैसे? नहीं नहीं आपको भी नहीं पता सर, मैं बताता हूँ। नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, नहीं 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 मैं बताता हूँ। ये आप बोलो ये बेवकूफ़ आदमी है, बेवकूफ आदमी जिसने एक फर का कोट पहना है ये फर का कोट पहना, और जिसे किसकी ज़रूरत है? जो आपने करी हुई है शेव की। हाँ, इसे शेव की ज़रूरत है। अब भालू बोले देखो ऐसा है कि तुम लोग यार मेरी बात सुन नहीं रहे, तुम सबका मालिक कौन है तुम बताओ, मैं उसके पास तुम्हें लेके जाऊंगा। वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके, आओ। तो सुपरवाइजर, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर सब मिलके जो हैं जाते हैं साहब ये अपने प्रेसिडेंट साहब के पास। अब भालू जो है, भालू कहता है सर सर सुनो 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 सुनो, ये आपको बताएंगे अभी कि मैं भालू नहीं हूं, मैं बेवकूफ़ आदमी हूं जिसने फर का कोट पहना है और जिसे हजामत की होती है। आप ये मत मोलना ना, आप इनकी बात मानना, मैं बता रहा हूं मैं भालू हूं। ठीक है भाई ठीक है, सुन लिया, काम डाउन। हाँ पर मुझे भी लगता है कि तुम वही हो, तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो जिसने फर का कोट पहना है और जिसे हजामत। नहीं सर मैं भालू, अरे नहीं, ऊपर से तुम ढीठ भी बहुत हो, आज मैं साबित करूंगा कि तुम भालू नहीं हो। चलो, भालू कहाँ होते हैं? भालू या तो होते हैं चिड़ियाघर में या होते हैं सर्कस में। फैक्ट्री में भालू नहीं होता। तुम कहाँ हो? फैक्ट्री में हो। चलो मेरे साथ चलो, चिड़ियाघर में पूछवाता हूँ कि तुम कौन हो। आप साहब उन्होंने लंबी सी लीमोजीन निकाली और जो सुपरवाइजर जो है ड्राइव कर रहा है, बगल में बैठा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर लेके जा रहे हैं। चिड़ियाघर पहुंचे, टिकट खरीदी, अंदर पहुंचे, मगरमच्छ, शेर, हिरन, पीकॉक, करते 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 किसका पिंजरा आया? भालू। भालू का। अब भालू के पिंजरे पे जब पहुंचते हैं तो प्रेसिडेंट जाके, ये भालू है। प्रेसिडेंट कहता है पिंजरे के अंदर वाले भालू को, ये भालू है? अंदर वाले देख रहे हैं, नहीं ये भालू नहीं है, ये भालू थोड़ी है। अगर ये भालू होता तो आपके साथ बाहर थोड़ी होता, हमारे साथ अंदर होता। कह रहे पर मैं तो भालू हूं। फिर साहब वो पिंजरे के अंदर जो बहुत सारे भालू थे उनमें से एक छोटा बच्चा उसका आया, अरे मुझे पता है कौन है, अरे मुझे पता है कौन है। ये एक बेवकूफ आदमी है जिसने एक फर का कोट पहना है और जिसे शेव की जरूरत। शेव की जरूरत है। सर आप मतलब इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हो शेव की जरूरत है? मुझे मालूम है भालू दुखी है, आप दुखी मत हो, कहानी पहुंचेगी अपनी जगह। तो साहब वो जाता है, कहते हैं कि इन्होंने भी बोल दिया, अब एक और सबूत दे देंगे, कहाँ चलेंगे? सर्कस। अब सर्कस जो था वो बहुत दूर था चिड़ियाघर से, 600 माइल्स। अब जो है बिल्कुल हाईवे पे जा रहे हैं। भालू ने भी कभी लिमोजिन में ट्रैवल नहीं करना, मजे तो आ रहे थे उसको। अरे हाँ चलो इसी बहाने सफर तो कर लिया थोड़ा। अब साहब जाके सर्कस की लेते हैं और वही प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को छोटी मोटी टिकट थोड़ी लेगा, वो जाके अपना सीधा ग्रैंड स्टैंड की उसने टिकट ली, साथ अपने भालू को बिठाया, पूरा जो है अपना सर्कस देख रहा है। ये देखो एलिफेंट फुटबॉल खेल रहा है, ये फलाना ढमकाना, वो जोकरा है ट्रेपीज आर्टिस्ट, सब चल रहा है। और आखिर में आया भालू आते हैं। अब भालू क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं, हाथ में गुब्बारे लेके, और वो खेल रहे हैं। पूरा जब शो खत्म हुआ तो प्रेसिडेंट लेके आया भालू को सर्कस के भालुओं के पास। ये भालू है? नहीं, उसने ही बोला नहीं है। सर्कस के अंदर के भालू कह रहे नहीं नहीं ये भालू थोड़ी है। अगर ये भालू होता तो आपके साथ गद्दी पे बैठ के हमारा शो देख रहा होता, हमारे साथ साइकिल चला रहा होता गुब्बारा लेके। आया बड़ा भालू भालू भालू। बोले ना मैं तो भालू, पर किसी ने बात ना मानी। अब प्रेसिडेंट ने कहा एक सबूत दे दिया, 2 सबूत दे दिए, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, चल चल। अब इसको लेके जो है वो सीधा वापस चलते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाकर बड़ी सी मशीन होती है जहां पे 11 लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और 12 लोगों की उसमें जगह होती है काम करने की। और उसके बाद वो कहते हैं भाई भालू से लग जा। अब भालू जो है अब कुछ कर नहीं सकता। अब भालू ने उस दिन से फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। भालू जो है वो खुद मशीन बन गया।
करे जा रहा है। गर्मी हो गई भाई, उसके बाद कौन सा मौसम, फाइनली बरसात करते 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 जो है फिर सर्दी आई। जैसे ही सर्दी आने वाली थी फैक्ट्री बंद हो गई। अब फैक्ट्री जब बंद हुई तो जितने बाकी लेबरर्स वगैरह थे वो तो अपने अपने घर को चले, सब जा रहे हैं अपने घर को। भालू ने कहा अच्छा मैं भी इनके पीछे ही चलता हूँ, चले आ रहा है उनके पीछे, इसको पता नहीं कहाँ जाना है लेकिन उनके पीछे चल रहा है। चलो चलो तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ। वो अपने बहुत आगे निकल लिए, ये पीछे चले आ रहे हैं आराम आराम से आराम आराम से। इतनी पीछे रह गया कि सब निकल लिए, ये पीछे खड़ा है अब अकेला, इसके पास जाने को कोई ठिकाना नहीं। इसने कहा मैं क्या करूं। फिर साहब ये चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, कोई इसके पास रास्ता नहीं है। फिर ये पहुंचा वहीं जहां इसने पहले क्या देखा था, क्या देखा था, सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज? हंसों का जोड़ा। हंसों का जोड़ा फिर से दक्षिण को जा रहा है। पेड़ के पत्ते फिर से हरे से पीले से भूरे से और करते 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 गिर गए। सर्दी आ रही है। उसने कहा सर्दी आ रही है तो मुझे क्या करना है, कौन से नेशन में जाना है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में जाना है। हाइबरनेशन में चलते हैं। आप साहब उसने कहा अच्छा हाइबरनेशन जाना कहाँ है, गुफा कहाँ है मेरी, गुफा 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 कहाँ है? आप साहब वो येरी गुफा। जो हुआ क्या था कि पेड़ के नीचे कुछ जमीन जो थी वो खोखली हो चुकी थी, उसके नीचे गुफा थी। इसने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखना चाहा, मैं तो भालू नहीं हूं, मैं तो बेवकूफ आदमी हूं जिसने फर का कोट पहना हुआ है और जिसे शेव की जरूरत है। मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं अंदर नहीं जा सकता। और भालू जो है जंगल में बैठ गया। सर्दी आई, इतनी सर्दी इतनी सर्दी इतनी सर्दी कि बर्फ से जंगल ढक गया। भालू भी बर्फ से ढक गया। भालू के सर पे, उसकी ठुड्डी पे बर्फ जम गई, उसके पैरों की उंगलियां जो थीं वो जम गई, उसके दांत बजे जा रहे थे। लेकिन भालू कह रहा कि मैं तो भालू नहीं हूं, पर काश काश मैं भालू होता, काश मैं भालू होता। वहां पे खड़ा खड़ा बैठा बैठा, काश मैं भालू होता। इतनी सर्दी बढ़ी, इतनी सर्दी बढ़ी, भालू को लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसके जहन में ये ख्याल आया कि नहीं अब तो खत्म हूं मैं, वो गया और जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, बड़ा कोजी कोजी सा था अंदर। ये अच्छा है। कुछ चीड़ की टहनियां थी वहां पर और चीड़ की टहनियों पर वो आराम से जो है सो गया। भालू अपने सुंदर सपनों में खो गया। हा। तो चाहे सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तक ने कह दिया कि भाई तुम भालू नहीं हो, तुम एक बेवकूफ आदमी हो जिसने एक फर का कोट पहना है और तुम्हें हजामत की जरूरत है। भालू ने नहीं माना, भालू ने सच नहीं माना उस बात को, क्योंकि भालू आखिर गया वहीं। तो कौन मुझे बताएगा यहां पर कि क्या भालू भालू था या क्या भालू बेवकूफ आदमी था या क्या भालू बेवकूफ भालू था? ये हमारे दोस्त यहां पर हैं। बेवकूफ़ भालू था, बेवकूफ भालू था। क्यों? क्योंकि उसने गुफा से निकला तो उनकी फैक्ट्री में गया, जो कि उस फैक्ट्री वाला ने कहा कि तुम एक इंसान दिखते हो इसलिए आपको शेविंग की ज़रूरत है, बाद में हो। अच्छा, और भी यहाँ किसी ने हाथ खड़ा किया। हाँ आ रहा हूं मैं आपके पास। भालू भालू था जिसे सबने मिलकर बेवकूफ बना दिया। भालू भालू था जिसने सबे मिलकर बेवकूफ बना दिया। वाह वाह वाह, क्या है, वाह वाह, कमाल का जवाब है, बड़ा सोचने वाला। आप सब सोचें जब तक पिछला जवाब आ रहा है। भालू बेवकूफ़ था क्योंकि वो खुद के वजूद को नकारते हुए दुनिया की बातों में आ गया। आपने पिछली बार ऐसा कब किया था? लगभग सब लोग यही करते हैं, 90% लोग। लगभग 90%। आप उन 90 में ही हैं, आप 10 में हैं? कोशिश कर रहे हैं 10 में आने की। कौन मुझे बताएगा ये भालू है या आदमी है? अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, 90%। आपने थोड़ा ह्यूमन काइंड को ज़्यादा इज्जत दे दी 90% बोल के, लेकिन हाँ प्लीज़। अरे वाह, आपकी मूंछ है यार,
एक्सचेंज कर लो. सर भालू एक ऐसा जंतु था जिसे ऊपर वाले ने जैसा बनाया था. इंसान एक ऐसा प्राणी था जिसने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो ऐसा समझने लगा जो इंसान ने उसको बोला है. वो तो वही था जैसा कि ऊपर वाले ने उसको बनाया था. गहरा है भाई, गहरा है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझने. हाँ सर, आप बड़े मजे ले रहे थे, आप कुछ बिना बोले कैसे जा सकते हैं? I understood this story very well, but I couldn't express it in Hindi. But yes, I think he is forced to believe that he's not a human being. He's something else. Because everyone is talking the same thing to him. So he believes that he's not a human being. Interesting how he said, forced to believe it's a human being. He saw himself in the bear. Who else saw themselves in that bear? किसको लगा हाँ भाई मैं ये भालू हूँ, हाँ ये मेरी बात हो रही है, ये मेरी कहानी है? शर्मा रहे हैं. लगा सबको 90% बोला है उन्होंने, क्या बात कर रहे हो? 10% भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे, बेशरम गहीं के. इतनी अच्छी कहानी के बाद ये हाल है. धत तेरे की लानत है फ्रैंक टेस्लिन पे. खैर, हाँ आप कुछ कहना चाह रही हैं मैडम कि सिर्फ फोटो खींचेंगी? अच्छा हाँ, और कुछ भाई पीछे सब. सर आप देखिए, आप जो है इतने सालों का विजडम लेके हमारे पास आए हैं, ये यहाँ पे इतना यूथ फैला हुआ है, आपको इस कहानी पे अगर कुछ बोलना चाहिए. सर भालू तो जो है अपने नॉर्मल उसमें रहेगा, लेकिन वो जो आदमी जो भ्रमित हो रहा है वो बेवकूफ़ है. आदमी बेवकूफ़ है, भालू समझदार है. यही तो आदमी को लगता है बस मैं ही हूँ, बाकी तो और कोई है ही नहीं. तो खैर कहानी बस इतनी सी है जितनी मैंने बता दी. अगर आप सोच रहे हैं कि और मैं कुछ आपको भी प्रसाद बांटूंगा तो वो ऐसा कुछ मामला है नहीं. पर टाइम क्या है? बहुत टाइम है. तो कहानी पे बात करनी है, स्टोरी टेलिंग पे बात करनी है, या एक और कहानी सुननी है? एक और कहानी इससे अच्छी नहीं होगी, बता रहा हूँ. क्योंकि ये कहानी मैंने चुन के, मैंने कहा अच्छा यहाँ जयपुर बुला रहे हैं कि कोई इनको बढ़िया कहानी सुनाऊँ, तो ये हाँ, लेकिन सुना दो एक और कहानी. किसी को मतलब आर्ट फॉर्म में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, एंटरटेनमेंट दे दो जितना देना है. चलो ले लो. कबीर के दोहे. अरे राना आप आई हैं, कबीर के दोहे. अच्छा आपने कबीर, अच्छा चलो भाई अब तो यही होगा, कबीर 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 कबीर. तो एक बार क्या हुआ, कबीर के दोहे, फोकस. हाँ, तो एडम मालूम है? नहीं पता? गिलक्रिस्ट नहीं, दूसरा वाला जिसको ऊपर से भेजा था भगवान ने. एडम एंड ईव, वही वाली. हाँ राइट, आदम एंड हवा. एडम एंड ईव को ऊपर से बोला था ये लो चलो गिरो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा. उनके साथ 3 और लोगों को भेजा था, 3 और कैरेक्टर्स थे. मालूम है किसी को वो 3 और कौन से थे? एडम, ईव एंड आप, हाँ, स्नेक इज वन. ओके यू आर राइट देयर. स्नेक ओके, स्नेक. हाँ, Saturn the devil. सैटन. ओके दैट्स 4. वो एक ही है, अलग अलग नहीं है. शैतान, हाँ, सेटन. एक और है भालू नहीं. अरे हाँ, मेरे दिल की बात कह दी इन्होंने. वो भालू है, वो एडम ही था. वो सर ने बता दिया ना, वो तो उन्हें तो बोल दिया, वो एडम ही था. एडम का नाम भालू था. अच्छा हाँ, एक और कौन था? हाँ, ट्री. नहीं, एप्पल ट्री नहीं यार. क्या मतलब एप्पल ट्री लगा रखा है ना. पीकॉक, देयर यू गो, पीकॉक. मैं हिंट देने वाला था. हिंट ये था कि अमीर खुसरो said about this particular creature that don't think that you're too beautiful because your feet are dirty. That's peacock. So when these 5 characters were thrown from heaven, जहाँ पर आदम आके गिरे, वहाँ गिर गए. आदम भी ताज़ा गिरे ही थे कि जंगल में पूरे खबर फैल गई. जितने हिरणों के झुंड थे वो कह रहे हैं अरे देखो कौन आ गया. आदम आ गए. आदम कहाँ से आए? वो जन्नत से आए. अच्छा
आए होंगे यार, तो क्या हम तो अपना काम करेंगे, हमें क्या लेना आदम से ना। एक हिरन था, एक हिरन था, वो बोला मैं तो जाके एडम से मिलूंगा, मुझे मिलना है यार, मुझे एडम से मिलना है। उसने कहा जाओ भाई तुम जाओ। अब ये जो है जा रहा है, एडम जाके करते 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 एडम के पास आया। हाय एडम, हाय, हाउ यू? फाइन। एडम सेज ही इज फाइन। ओके, अब एडम के मोबाइल पे अभी ताज़ा ताज़ा एसएमएस आया था, अल्लाह ने भेजा था एसएमएस। वो ये था कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पास एक हिरन आएगा, वो हिरन जब आएगा तो तुम्हारे लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज रहा हूँ, तुम्हें वही करनी है। इंस्ट्रक्शंस थी, स्टेप नंबर 1, स्टैंड लाइक दिस, लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट, 90 डिग्री, अटेंशन, आर्मी वाले मोड में, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अपने हाथ जो है वो ऐसे कर लो। स्टेप नंबर 3, हिरन को उसके अंदर से जाने दो। बस इतनी इंस्ट्रक्शंस थी। अब साहब हिरन आया, हिरन आया, हिरन ने एडम को देखा, हाँ वो हाँ व्हाट्सअप वगैरह सब हो गया। फिर जाके जो है एडम ने कहा भाई इंस्ट्रक्शन दी है, मैं वो करूंगा, तूने अंदर से निकल लियो। कहा ठीक है। वो ऐसे खड़ा हो गया, हिरन आके जो है अंदर से निकल गया। अब जैसे ही हिरन अंदर से निकला, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब जैसे किसने एक्स का डिओड्रेंट लगा दिया उसके, और इतनी अच्छी खुशबू, आय हाय 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 हाय। अब वो जाके सीधा जंगल में जा रहा है। अब जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, पूरे जंगल के जितने हिरन ने सब ने घेर लिया। अरे अरे देखो ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बढ़िया यार, आय हाय हाय। अब सब आके उसको देख रहे हैं, कहां से रही है, इसी में से आ रही है। कोई बात नहीं सर, दैट डजंट मैटर, आपको जन्नत से भेजा है, उसका हाथ लग गया तो नहाने वाना क्या है। ये तो आदि, ये तो भालू को इंसान ने सिखाया कि नहाओ। भालू नहाता है कभी? आप भालू हो? आपने शेव करी है? आपने फरका कोट पहना है? अच्छा, तो पॉइंट है, तो पॉइंट ये है कि जितने हिरन थे उन्होंने आके कहा ये है हमारा आदम। आदम नहीं, ये हमारा हिरन है, और इसके अंदर से बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप थोड़े इंटिमिडेटेड हो रहे हो, आप बनोगे? अच्छा, आप हो हिरन, ठीक है, एज यू लाइक ये कह रहे हैं, फेसबुक का जमाना है, एज यू लाइक। अच्छा, तो खैर भाई कहाँ गए थे तुम, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी कहाँ से परफ्यूम लगा के आए हो? अरे मैं तो एडम से मिलने गया था। तो हमें भी ले जाते, मैंने बोला था चलो तुम आए, हम काम करेंगे, हम जा रहे हैं एक्सबॉक्स खेलने। तो कहीं अब हमें भी जाना है, एड्रेस बताओ। मुझे नहीं, मैं गया बस पहुंच गया उनके पास। अच्छा 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 अच्छा, चलो हम भी जाएंगे। बस उस दिन से हिरनों का एक पूरा जत्था, एक पूरा झुंड जो है वो निकला आदम की तलाश में। कहाँ है भाई आदम? आदम 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 आदम, तू कहाँ, तू कहाँ? नहीं मिला भाई आदम। आदम कह रहा मैं कुमार गौरव की फिल्म का हीरो नहीं हूं कि आगे से मैं जवाब दे दूंगा। आप साहब ये चले आ रहा है, चले आ रहा है, करते 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 एक दिन जो है ये सारे मिलकर, जनरेशन उनकी बीत गई हिरनों की, सेंचुरीज, 2 मिलेनियम्स बीत गए। फाइनली जाके वो हिरनों का जो जत्था था वो सीधा जाके टकराया कबीर से। हाय कबीर, हाउ यू डूइंग? आई एम गुड। Kabir says he's good. So Kabir, have you seen Adam? No. Kabir says he hasn't seen Adam. Kabir further says he hasn't seen God too. I haven't seen Adam, I haven't seen God, but he's inside. If you're looking for that fragrance, look inside. कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मदमाही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे 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 बसे बसे राम हैं, दुनिया देखत नाही, दुनिया देखत नाही। थैंक यू, थैंक यू। Okay, so do you want to ask any questions? Questions? Oh, there you go. Kabir has a question for me. I went to JNU recently. Were you there for a Dastan Goal? When was that? January last year. No, January 2013. Then. Yeah, last year. January? I think October. Oh, yeah, August. Yeah, September. Yes, I was there. Late night. Yeah. It was very beautiful. Can you do something from... Dastan Goi. So, just before this session, my mentor and Ustad, Mr. Mahmood Farooqi, was
Mr. Mahmood Farooqi was one of the panelists, and Vijaydan Detha was being remembered, and the moderator said, "Oh, आप कोई दास्तान गोई सुनाना चाहेंगे?" उन्होंने कहा वो उसके लिए पैसे लगते हैं, ये मुफ्त में हो रहा है, लेकिन फिर भी सुना दूंगा. तो yeah, because of course one of my identities is related to Dastan Goi, and I'm fortunate to have one of my mentors here, and because it's a request and it's important that we spread our form here, I'll give you a छोटा सा टुकड़ा. तो गुलगुना कशाने अर्ज़े शाहिदे बयान इस तरफ फरमाते हैं कि जब तिलिस्म के बादशाह अफरासियाब को पता चला कि हमारा यार ने मेहताब जादू का कत्ल कर डाला, तो वो गुस्से से थर थर कांपने लगा और इस गजब से दरख्त की तरफ देखा कि वो जलने लगा. खुद भी उसी दरख्त के अंदर शामिल हुआ और शोला बन के जो वापस निकला तो हाथ में एक तख्ती थी कि जिस पे सूरत एक हसीना जमीला की बनी थी. अफरासियाब ने दस्तक दी, जमीन शक हुई, अंदर से एक साहिर निकला निहायत बदसूरत. अफरासियाब ने वो तख्ती उस तस्वीर की देकर उस साहिर को दी और हुक्म दिया कि ए आज़र जादू, जल्द रवाना हो. हमारा यार मेहताब का कत्ल करके हनौज उसी जंगल में है, जा उसे तलाश करके गिरफ्तार कर ले आ और उसके पहचानने को ये तस्वीर दी जाती है. जो शख्स तुझसे राह में मिले पहले तू इस तस्वीर को देख लेना. ये तस्वीर गो की औरत की है, मगर जो शख्स अय्यार तब्दील करके आएगा और उसकी जो सूरत असल में होगी वैसी ही ये तस्वीर हो जाएगी. और अगर वो अय्यार ना होगा तो जैसी ये इस वक्त इस औरत की है वैसी ही रहेगी. So that was a glimpse of Dastan Goi. Buy tickets and see the full show. Any questions about the form? Yeah, there you go, sir. What are the 5 main essentials of storytelling in this form? 5 main essentials of storytelling in this form. Okay, interesting. So, number 1, the text. What remains primary in any form is the what and not the how of it. I always say that, storytelling is an art form. People say, oh, you do it so well, we wish we could also do it like you. But the point is that in the word storytelling, story comes first and telling comes later. You have to know your story. If you know your story, you will discover how to tell it. So know your text. Know what you're talking about. Number 1. Number 2 is, in this form, the one that I did, there is no movement. So all the story is being actually told sitting like this. The story could be 2 hours long and I'm just sitting like this. That's how it is performed. So the only thing that I have on my proposal is my voice and the upper part of my body. So I'll be doing that. So I can't really do anything else. So what do I make of my voice? What do I make of my body? Is what my story is. And the third very essential element of this particular form would be how the audience responds. And when I say that, what I mean is that while there is no interactivity, like here I went to you and I kind of threatened her that, I'm sorry. I'm sorry, I said. Okay, that's all right. She forgives me. Okay. So, yeah, the point is, I won't go in a Dastan Goi form and tell you, I won't do that. But at the same point of time, there is a culture around this form of storytelling that we encourage the audience to respond by saying, wah, wah. That's been the culture. There's a famous Urdu saying where we say, जिसकी ताली पिट गई, उसकी इज्जत उतर गई. तो अगर आप ताली बजाएंगे मेरे उस करने पे तो मैं आपको कहूँगा नहीं, आप वहाँ कर दीजिए, आप मेरी इज्जत ना उतारें. प्लीज़ शेव नहीं करूँगा वरना. अच्छा ठीक है. So that's 3. बाकी 2 यार कभी और, ठीक है. आज इसकी तैयारी नहीं थी. ओ राना आपा हैज़ अ क्वेश्चन. या जैसे कि तुमने बहुत बार कहा है कि तुम्हें घर से डिसुएड किया गया था इसमें आने के लिए, लेकिन तुम्हारा पैशन है, तो हाउ मच करेज, हाउ मच गट्स एंड हाउ मच परसेवरेंस डज इट नीड टू
go forward with a passion that you have for storytelling. अपनी struggle जो भी तुम्हारी हुई है to reach here. अभी ये पूछ ही डाला है आपने, तो फिर वो कहानी से अच्छा और क्या तरीका है बताने का? ठीक है, तो दिस अ पोर्शन ऑफ द दास्तान व्हिच आई रोट ऑन कबीर, एंड इट स्टार्ट समथिंग लाइक दिस कि एक बार क्या हुआ कि गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ पहुंचे गंगा किनारे और कबीर से बोले, कबीर चलो मुझे ढूंढ के बताओ, और ये कहते ही गंगा में छलांग मार दी। अब कबीर ने एक हाथ गंगा में डाला कि गोरख उनके हाथों में थे। अब कबीर बोले गोरख से, गोरख तुम ढूंढ के बताओ, और ये कहते ही कबीर ने गंगा में डुबकी मार दी। गोरख उनके पीछे गए, यहां गए वहां गए, उधर ढूंढा, लेकिन कबीर हाथ ना आए। थक के हार के जब गोरख बैठ गए, कबीर खुद सामने आए और बोले कि उन्होंने गंगा की एक लहर का रूप धारण कर लिया था। ये थी कबीर की सुरती, ये था कबीर का प्रेम। तो सत्य प्रेम का भर भर प्याला आप पिए मुहि प्यावे, पर्दा दूर करे आंखिन का ब्रह्म दरस दिखलावे, लेकिन हाजरीन घर की मुर्गी दाल बराबर। कबीर के घर वाले जो थे वो उनसे खुश नहीं थे, खासकर उनकी अम्मा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, सच्ची में एक दोहा है, उसमें लिखा है कि कबीर की अम्मा जो थी अपने बेटे से बड़ी दुखी थी। क्या यार, हम जुलाहे हैं, हमारा काम है कपड़े बुनना, लगता है ये लड़का सब धंधा छोड़ छाड़ के जो है जोगी बनने वाला है। अब एक तरफ तो बेटे से चिक चिक लगी रहती, दूसरी तरफ बहू से तू मैं खत्म ना होती। अब आप ही बताएं, ऐसी हालत में इंसान अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा? खैर, तो जब 1.5-2 साल पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी तो मेरी माँ लगी मुझे सुनाने, इसमें ना कुछ नहीं रखा है, तूने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेना है, कब तेरी समझ में आएगी, कब तू कुछ ढंग का काम करेगा, कब 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 कब। तो मैंने अपनी माँ से वही कहा जो कबीर कहते थे, अपनी माँ से ही नहीं सबसे, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। माँ बोली देख ऐसा है, एक कहानियों से ना पेट नहीं भरता, पैसा बहुत जरूरी चीज है। मुझे बड़ी चिंता होती है, देख मैं तो तेरा भला चाहती हूं, तू बता दे तू क्या चाहता है। माँ ने कहा, माँ चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। माँ कहती ये सब जो है ना, तू अपने काम पे ध्यान दे, ये सब कुछ भूल जा। अब जहां एक तरफ माँ कबीर को भुलवाने में लगी है, बचपन में स्कूल में हमें पकड़ पकड़ के कबीर के दोहे याद करवाए गए और कहा गया इसकी प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। काश बस इतना बता देते कि कबीर की कविता में प्रसंग सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और उसका हर दोहा इसी प्रेम की व्याख्या। पर ऐसा ना हुआ, और क्योंकि ऐसा ना हुआ इसलिए हाल बड़ा बुरा है। पर हाल चाहे जितना बुरा सही, कहानी चाहे जितनी अकथ सही, दास्तान सुनाती रही जाएगी। तो पेश है दास्तान 2.5 आखर की, टिकट खरीद कर देखना। तो कमिंग बैक टू राणा पास क्वेश्चन विच इज हाउ व्हाट वाज द स्ट्रगल अबाउट। हाँ, वो तो जिस दिन नौकरी छोड़ी तभी था भाई, क्या अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी तुमको, अब कौन घर का खर्चा चलाएगा। तो मैंने कहा अच्छा बात तो सही है आपकी, पर थोड़ा टाइम दे मुझे। पर धीरे 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 करते गए। एक दिन क्या हुआ कि कोई फेस्टिवल था, अखबार में फोटो छप गई, नाम आ गया, पड़ोसन आ गई, अरे आपके बेटे की फोटो आई है देखो। माँ कह रही हो अच्छा चलो कुछ तो कर रहा होगा। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब तीसरी बार हुआ और तीसरी बार के बाद उन्होंने देखा कि अच्छा ये करता है, मैंने कहा अच्छा चल यार थोड़े कम भी पैसे आ रहे हैं तो चल जाएगा। और आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि 2 Feb को मेरी फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक लॉन्च हो रही है, विच इज़ कॉल्ड माई गांधी स्टोरी इन बॉम्बे। एंड माई मदर सेड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई बी देयर एट द बुक लॉन्च इन बॉम्बे। So yeah, that's where we are. Just know your story. Universe will find its way to tell it. That's what I believe. Yeah. Can you just translate whatever you said in English? The one doha, the one you said 2 dohas right now. अच्छा, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे, यू नो, धीरे, स्लोली
slowly my mind, everything will happen in its own time. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा. You know, a farmer can come and irrigate the whole field daily 5 times, 10 times, but the fruit will come when the season comes for it. So everything has a time. You know, if my mother says कि नहीं 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 अभी ये नहीं करना है तुमको, wait my mother, wait, everything will happen in time. ठीक है. और दूसरा क्या था? चाह गई चिंता मिटी. वो आपको समझ में आ गया. उस चाह गई चिंता मिटी, ये इसके जवाब में था. उन्होंने बोला ना कि भाई मैं तो तेरा भला चाहती हूँ, मुझे तेरी चिंता होती है. मैंने कहा चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह. Stop wanting and everything will come to you. Which reminds me, I know it's not, maybe it's appropriate. So I graduated from Hindu College and Imtiaz Ali is our alumni. So once he came to our college and I remember we were sitting in the lawns and he says this one thing, सब कुछ करो, अच्छा है सब कुछ करो, but don't run behind fame and money. The more you run behind them, the more they'll run away from you. So stop running. जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह. Yeah. Okay, I'll come. I've got it's coincidental that you're talking about the power of the story. And I'd like to just share something that has happened yesterday night. Superb. And I'm going to share something that's been happening in the organization that I work in. Which is? It's known as Humana. It's a medical insurance carrier in America. I'm centered in Kentucky. I've been talking to my niece who's thinking of going into further studies, and I've been talking about one core principle saying, what's your story? Exactly. I've been trying to talk to her about take the 3.5 years of your past and put them together as a story that can hold itself to eternity. And it's great. I was just walking past, I'll be honest, I was not attending the session, and I heard you talk about a story, and I was like, I have to come in here. And the other piece is, Humana actually is a $34 billion company, so it's a significantly huge. थोड़ा उधार दे दो यार. मेरे पास नहीं है यार, मैं दे देता हूँ वरना. $34 billion. Okay. Yeah, it's a Fortune 100 company. And one of the key pieces is give up desires. Thank you for being my mother. Yeah. The CEO and the chief human officer both have the same thing that they say. Story is the most powerful way of going forward. These are business heads who are talking about the power of the story. So I just wanted to share those two pieces with you. Yeah, people don't come here to attend a literature festival. People come here to attend a story that's called the Jaipur Literature Festival. You had a question. You know, it's a little unusual that someone as young as you is so deeply into Kabir, and I understand Amir Khusro. So was that part of the thing of Dastan Goi, or were you always interested in that? Well, I think, things come to you. And that's, when I say that, I literally mean that things come to you. So the first script that I wrote in the Dastan Goi format was a spoof on Dastan Goi. I said, what does the audience think about this form? Let's take a, satirical, let's make a satirical comment on what this form is. The second thing that I wrote was on mobile phones, an Urdu story on mobile phones. And then somebody said, oh, can you write something on Kabir? I said, yeah, okay, let's try this. And this was in 2011 I wrote it, and then in 2011 I just couldn't get back to these guys and I was late. 2012 they got back saying, would you like to do it this time? I said, yeah, I already have a script written, let's do it. But then when I looked at the script, I found it so trashy, I was like, oh, this is not happening. And then I start writing a script on Kabir. 1 month passes, 2 months pass, and I was like, oh, it's not happening, man. This is serious stuff. It doesn't happen. But when I said that, I actually heard someone, no, don't worry, it'll get written. And it got written. I didn't write it. That's what I believe. And I think the last 3 lines of my Kabir story are, which is of course a compilation not written by me. Janm mila, birth. Janm mila, dhai aakhar ka. Dhai is 2.5, aakhar is alphabet, akshar ka distorted form hai. Janm mila dhai aakhar ka. If you look at janm,
आधा न और म, ढाई. जन्म मिला ढाई आखिर का, प्रेम किया ढाई आखिर का. जन्म गवाया, प्रेम ना पाया, सत्य मिला ढाई आखिर का. सत्य मिला ढाई आखिर का. When I came across, I go, oh shit, man, this is not one story. These are 3 stories in one. Because if Prem is Kabir, there is somebody who has to be Janm and there is somebody who has to be Satya. I knew that Satya was Gandhi. Nobody else could be Gandhi. Because even while writing Kabir, I was like, oh, I've read this, and I never read Kabir before. But it came back to me that Kabir and Gandhi were the same person, just born in different times. And then I was like, who is Janm? And then I read, and then I was like, oh my God, this is Amir Khusro, the pioneer of Sufi movement in India. And nobody has even explored who this guy is. All we know about him is Chap Tilak Sab Chini. That's what we know about him. But that's not Amir Khusro. That's not Amir Khusro. And on that note, again, one of the primary instruments of my life, I'm somebody who has been really instrumental and kind of driven me, of course, my mentor. So I'll devote 2 different couplets by 2 different poets. One by Amir Khusro, which says, Khusro, Maula ke रूठते पीर की शरण में जाए. खुसरो मौला के रूठते पीर की शरण में जाए, कहे पीर के रूठते मौला नहीं होत सहाय. And then Kabir says that, भूल गया, फिर कभी. So that's where we are. Anything else? Oh, so many. Now questions are coming. I like it. Yeah. Firstly, it's commendable what you did. And thank you. It's an amazing art. Thank you. And I see power of storytelling as a powerful tool, as it is. But what I would like to know from you is, what's the future for storytelling? Everything going online, Facebook. I think students right now don't care about Kabir and all Will that. you believe, interesting that you say online, will you believe that somebody just got in touch with me saying that, can you write a story on the issue of internet access in India? There are people right now in this room who have smartphones in their hands and 3G on it, and they'll find their way out to where Charbagh is. And in the same room, there are people who have not heard what internet is. They'll have, acha, net kahan hai tera, net kahan hai? They even don't know what the mechanics of internet are. That's what India is. There are so many Indias within this country. Forget India. I chose Bombay as my research locale. And if you go to Dharavi, there's a totally different story there. If you go to Pedder Road, there's a totally different story there. When you talk about stories coming online, there are so many stories there which need to be brought right here, where all of us are sitting, so that something which is not being talked about, we start discussing it. When we start discussing it, we'll go and tweet about it. That's when it'll go online and we'll start talking. That's how it works. It's good. I mean, digitization cannot hinder storytelling. It'll only help storytelling come more powerfully to the age where we are living in. That's what I believe. Yeah, please. I love your headgear. Can I borrow it? I didn't have a topi, so I had to do this. I love it. I love Me it. too. I was looking for a headgear for my Amir Khusro musical narrative, and I I'd am be happy getting to do it for ideas. you. Yeah. Sure thing. Yeah. Ankit, it's been an absolute privilege listening to you. Thank you. Absolute delight. Thank you. Thank you. I'm not really in the same line of work, but I intend getting into storytelling. So, what would be your serious, one little piece of advice for someone who is an amateur, theater / Did you hear the first story I told today? No, we kind of walked in a little late. I think we're So sorry, you missed the lesson then. Oh, that's No, not say it fair. again. Okay. Listen. That's it. Right. Listen. I won't say any. Think about it. Sure, Listen. sure. Listen. Thank you. Listen. Thanks. That's how it all started. Okay. Anything else? Yeah. Ankit, great. I was really interested in you, and I would like to invite you to have a session in Dubai. I'm working in Dubai. Thank you. So, Yeah, boni ho gayi. Okay. Sorry. see, you deserve a reward. Thank you.
Thank you. And what do you expect from us back? $34 billion. I think we should give him a standing ovation, a big hand, because it's so entertaining, so interesting, so amusing. You are Thank highly you. talented. Thank you. Thank you. You have a very good future, dear. Thank you. Thank you for that. Thank Thank you you. for this session. Thank you.